Hello everyone, my name is Dilshad Basi and today we will study the productive mechanism. First chapter of past tense economics. So what is productive mechanism? Productive mechanism means the system which determines the production of various goods and services in the economy. Means through productive mechanism, any economy decides what goods and services they will produce. Means like Canada is a capital intensive economy. So what they will produce? They will produce technological products. What India will produce? We are labor intensive market. So we will produce that kind of product. What Saudi Arabia will produce? They will produce crude oil. Okay. So productive mechanism. I hope this is clear. What is productive mechanism? Now, to understand productive mechanism in a better way, let us first understand what is production. There are different views of different economists on this. Adam Smith said production means production of material goods only. एडम स्मिथ ने कहा कि सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रोडक्शन माना जाएगा जिसमें मटेरियल गुड्स होंगे, मतलब कि किसी ने लकड़ी से वुड से टेबल बना दी तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्शन. लेकिन अगर एक टीचर टीचिंग कर रहा है तो वो इमटेरियल है, इसलिए उन्होंने अपनी डिफिनीशन में उसको इन्वॉल्व नहीं किया. लेकिन लेटर इकोनॉमिस्ट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने इस डिफिनीशन को रिजेक्ट किया. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन है एडिशनल ऑफ यूटिलिटी और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है. अभी किसी भी तरह से हो सकता है. यूटिलिटी मतलब आप लोग को पता होगा, 9th में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज utility. So what the modern economist said, that creation or addition of utility, that is production. Since production is creation or addition of utility, it can be done by the following transformation. Means changes, like you grow apple in Kashmir and then you transport that apple to Lucknow or Mumbai. So that apple which was produced in Kashmir has less utility there, but in Mumbai it has more utility, so that will be called production. Okay, I hope this is clear. Now it can be transformed through time, form, like we transform wood into table, that is also production. We produce woolen clothes in summer and sell it in winters, that is also what? That is also utility, that is satisfying human want more, means that is providing more utility in winters. Okay, so it can be done through many transformations. Now moving further, what are the factors of production? There are 4 factors of production. Modern economists said that there are 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. Let's see what is land. Land is free gift of nature. You all know we cannot increase or decrease the supply. Land is a passive factor of production. Passive factor of production का मतलब क्या है कि जो लैंड है वो खुद से कुछ ग्रो नहीं कर सकती, उस पर कोई ना कोई ह्यूमन एफर्ट लगना जरूरी है. लेबर क्या होता है? लेबर आप लोग को लगे कोई भी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, दैट इज लेबर. नो, लेबर इज अ ब्रॉड टर्म. लेबर इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड मेंटल वर्क डन फॉर रेम्यूनरेशन. अगर सिर्फ आप इतना बोलेंगे या लिखेंगे कि काम करना इज लेबर, so that will be false in economics. You have to add that for remuneration, for money, then it will be completed. Now the third one is capital. Produce means of production. You all know what is capital. Produce means of production मतलब आपके पास पैसा है, आपने मशीन ली, that is machine is a capital. But produce means of production. Entrepreneur, you all know entrepreneur has got different names. Some says the risk bearer, captain of the ship, risk taker, organizer of factor of production. And now here comes land. Land is a debatable topic. Alfred Marshall said by land is meant not merely land in the strict sense of the word, but whole of the materials and forces which nature gives freely for man's aid in land, water, in air and light and heat. What is that? कि जो कुछ भी लैंड पर है, जो कुछ भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, दैट इज लैंड, लाइक एयर, लाइट, हीट, वाटर. बट economist Professor Karen Cross said a commodity should be called a factor of production only when its supply can be controlled by human. So
व्हाट कैन बी टॉप दैट किसी भी चीज को अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं तो उसमें एक ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका जो प्रोडक्शन हो, वो जो सप्लाई हो, वो ह्यूमन कंट्रोल में हो। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन था दोनों लोग की डिफिनेशन में। So what we can say, so we can say that land in economics means not only the surface of the earth, but all those free gift of nature, the supply of which can be controlled. ठीक है, तो लैंड का मतलब क्या है? लैंड का मतलब ये है कि सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं, कि जो सरफेस है वही लैंड है, वो सारी चीजें, वो सारे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जिसकी सप्लाई हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोल है, गोल्ड है, हम उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या है ये माना जाएगा लैंड में। बट अगर हम सनशाइन की बात करें, अगर हम रेन की बात करें, तो ये लैंड में नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड के? तो आप सबको पता है, यू ऑल नो, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया उसे ऑब्टेन करने के लिए। आप तो कहेंगे नहीं सर, कैसे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है सर, हम तो पैसा पे करते हैं तब जमीन खरीदते हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है कि हम पैसा पे करते हैं तभी जमीन खरीदते हैं, लेकिन सोचिए जरा, हजारों साल पहले क्या हमने कोई एफर्ट लगाया था जमीन बनाने के लिए? नहीं, नेचर ने हमें लैंड दिया था। ठीक है, वी गॉट लैंड फ्रॉम नेचर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड इज दैट सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। व्हाट डज दिस मीन? सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। मींस व्हाटएवर लैंड इज देयर, जो भी हमें लैंड नेचर से गिफ्ट में मिली एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हम उसको ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब लैंड इज neither destructible nor it can be increased or produced. Okay, the third characteristic of land is difference in fertility. हर सॉइल की फर्टिलिटी डिफरेंट होती है। जैसे एलुवियल सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है, रेड सॉइल कम फर्टाइल होती है। ठीक है, कहीं कहीं अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब पे फर्टिलिटी, पंजाब में जो सॉइल पाई जाती है वो फर्टाइल होती है ज्यादा। ठीक है, राजस्थान के एरियाज क्या है, लेस फर्टाइल है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो लैंड में वो रहता है, मतलब जो फर्टिलिटी है वो डिफरेंट रहती है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सॉइल्स में। द फोर्थ पॉइंट इज indestructibility of land. As I told you, land cannot be destroyed. You can change the shape or composition but cannot destroy. आप लैंड पर वेल बना सकते हैं लेकिन आप लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आप उसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। अगर वो फर्टाइल है तो उसको आप लेस फर्टाइल कर सकते हैं, या कम फर्टाइल है तो आप फर्टिलाइजर यूज करके ज्यादा फर्टिलाइज कर सकते हैं उसको, लेकिन आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, लैंड को मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ लैंड। The other characteristic is land is immobile. If you have land in Lucknow and you want to take your land to Lakhimpur or you want to take your land to Mumbai, you cannot do that because land is immobile. The other point is passive factor of production. What does this mean? Passive factor of production. This means that land cannot produce anything on its own. Like labor can do anything labor wants, but दिस इज नॉट द केस विद लैंड। लैंड पर किसी ना किसी को कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगना पड़ेगा कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, लैंड इज हेट्रोजीनियस, मतलब कि लैंड हेट्रोजीनियस है का मतलब क्या है कि कभी भी दो पीस ऑफ लैंड एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। उनका शेप अलग होता है, साइज अलग हो सकती है, उनका कंपोजिशन अलग हो सकता है, वो उनकी फर्टिलिटी डिफर कर सकती है। ठीक है, तो लैंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। Now, coming to the productivity of land. What is productivity of land? What do you mean by productivity of land? As it is written on the screen, productivity of land means the capacity of a piece of land to produce a crop. मतलब एक पीस ऑफ लैंड की क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है कोई क्रॉप प्रोड्यूस करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। कि वो लैंड कितनी प्रोडक्टिव है, लेस प्रोडक्टिव है, ज्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ? Productivity of land means the capacity of a piece of land to produce a crop. Moving further, what are the factors that affect the productivity of land? क्या चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं लैंड की प्रोडक्टिविटी को? तो सबसे पहली बात है फर्टिलिटी ऑफ लैंड। As you all know, if the soil is more fertile, then the productivity will be more.
and if the soil is less fertile, the productivity will be less. As it is written on the screen, a flat and well-leveled land is comparatively more productive than an undulating one. मतलब अगर कोई लैंड फ्लैट है, ठीक है, ऐसी एकदम फ्लैट है, तो क्या होगा कि यहाँ पर पानी रुकेगा और क्या होगा, फसल आराम से अच्छे से होगी. लेकिन अगर कोई जमीन ऐसे आड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या होगा, उस पर पानी रुकेगा नहीं, ठीक है, वो मॉइस्चर रिटेंशन करेगा नहीं, तो क्या होगा, फर्टिलिटी जो है वो कम होगी और प्रोडक्शन भी इससे अफेक्टेड होगा. कहीं पर पानी रुक जाएगा, कहीं पर पानी पहुंचेगा ही नहीं, रुकेगा नहीं, ठीक है. तो दिस विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. See the second one, proper use of land. The productivity of land depends directly on its proper utilization. अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम नहीं करेंगे जमीन का तो प्रोडक्टिविटी हमारी घट जाएगी. जैसे अगर ब्लैक सॉयल है तो हम सबको पता है कि ब्लैक सॉयल किसके लिए फिट होती है, कॉटन के लिए फिट होती है, ठीक है. इसका ब्लैक सॉयल का दूसरा नाम भी कॉटन सॉयल होता है, ठीक है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. लेकिन अगर हम उसमें क्या करें, राइस उगाए, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी. क्यों? क्योंकि वो सॉइल का हमने प्रॉपर यूज नहीं किया, ठीक है. जैसे अगर आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं और हम आपको मैथमेटिक्स दे दें कि बेटा ये सॉल्व करो, तो क्या होगा कि आप नहीं कर पाएंगे. और जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है उसको हम बोले कि बेटा चलो तुम ड्राइंग बनाओ, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी. क्यों घट जाएगी? क्योंकि प्रॉपर यूज नहीं हुआ. द थर्ड पॉइंट इज इंप्रूवमेंट ऑन लैंड बाय इंक्रीजिंग इरिगेशन पोटेंशियल. ठीक है, मतलब अगर इरिगेशन का प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है तो क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो घटेगी. लेकिन अगर हम उसमें सिंचाई का प्रॉपर, इरिगेशन का प्रॉपर जो है अरेंजमेंट करते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो पोटेंशियल है लैंड की प्रोड्यूस करने की वो बढ़ जाएगी. ठीक है. अब चौथा पॉइंट आता है एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजर. ऑर्गेनाइजर कौन? जो उसकी देख रेख कर रहा है, जो उस पर काम कर रहा है या करवा रहा है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजर है. तो अगर लैंड जो है, हमें पता है कि लैंड क्या है, लैंड पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती. तो अगर आप एग्जाम्पल, आप एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, तो आप अगर उसके ऑर्गेनाइजर है, आप सारी चीजें देख रहे हैं कि लेबर कितना काम करेगा, कौन सा फर्टिलाइजर पड़ेगा, इरिगेशन कब होनी है. तो अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी. अगर आप सही कॉम्पोजिशन, सही मात्रा में चीजें यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सही प्रोपोर्शन में यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजर कम यूज करना, आपने ज्यादा यूज कर लिया, आपको मार्च के महीने में इरिगेशन करना था, आप अप्रैल में कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है. तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजर की एबिलिटी नहीं है उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो घट जाएगी. लेकिन अगर आप एबिलिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है अच्छा करने की, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. ठीक है. As you can see on the screen, if everything is used in correct proportion, production will increase. अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाएंगे. लेकिन अगर आपको ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है सही से, तो क्या होगा, आपकी वजह से प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी लैंड की घट जाएगी. इम्प्रूव मेथड ऑफ कल्टीवेशन. इम्प्रूव मेथड ऑफ कल्टीवेशन का क्या मतलब है? इम्प्रूव मेथड ऑफ कल्टीवेशन का मतलब ये है कि अगर आप अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग करेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है या जो प्रोडक्टिविटी है वो घटी रहेगी. मतलब अगर आज भी आप अपने खेतों में बुलक्स यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर जो है HYV सीड का यूज नहीं करते हैं, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? नहीं यूज करेगा, नहीं बढ़ेगा. क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आप ट्रेडिशनल मेथड से आप काम कर रहे हैं. लेकिन अगर आप इंप्रूव्ड मेथड से करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम करेंगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. लोकेशन ऑफ द लैंड. अब ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्यों? द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स सिचुएशन. A land situated near the market is more productive than a land located in a remote area. Q. This is because it requires less time and money to transport the product to the market. मतलब कि अगर आपकी जमीन पास में है, मार्केट के पास में है, तो क्या होगा, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं होगा. मतलब आपको जब कुछ वहां पहुंचाना है तो भी आसानी से पहुंच गया, लेस कॉस्ट में पहुंच गया. और जब खेतों से, आपकी फील्ड से, आपकी लैंड से कुछ मार्केट प्लेस तक ले जाना है तो भी कम कॉस्ट में पहुंच जाएगा और इजीली पहुंच जाएगा. तो लोकेशन ऑफ द लैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द सेविंग पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी इज व्हाट? लेट्स सी. Land productivity increases if the government encourages research in agriculture and provide credit facilities to agriculturalists. मतलब क्या है इसका, कि मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करे कि जो आप फर्टिलाइजर्स लेते हैं उस पर अच्छी खासी सब्सिडी दे दें, तो क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी. क्योंकि आप जितना खरीदना चाहेंगे खरीद लेंगे. अगर आपको जो है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स पे गवर्नमेंट छूट दे तो क्या होगा, टैक्सेशन कम कर दे तो क्या होगा, या फिर छूट दे, सब्सिडी दे, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. लेकिन अगर वही गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे या सब्सिडी घटा दे, सब्सिडी हटा दे, तो क्या होगा, आप डिमोटिवेट होंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहेगी उससे.
ठीक है, और क्रेडिट फैसिलिटी ना मिले, जैसे बहुत सारे बैंक आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे कि नाबार्ड है और बहुत सारे बैंक है जो कि एग्रीकल्चर के लिए होते हैं, एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती है तो 100% आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्टेड होगी कहीं ना कहीं।